Now children, we are going to discuss the questions of your test current electricity test 3. The first question is, there are n identical cells, each of EMF xi. There are n identical cells and each EMF is xi, internal resistance is small r, and they are connected in a series. Remember, they are connected in series and the ends of the combination are joined without resistance. Must be mentioned without resistance. That means there is a no resistance. So the question is, what is the terminal potential difference across this cell? So first of all, you need to find what is the total EMF. How many cells are here? N cells. EMF of one cell is xi. So total EMF is N xi. Total resistance is R and time NR. So what is the current? Total voltage upon total resistance xi by R. Now V is equal to xi minus IR. This is a formula. Xi is a EMF, I is xi by R. Xi by R and R is internal resistance. R cancel. Xi minus xi, it is equal to 0. So the answer is first is 0. The second question. The second question is, what is the product on resistivity, means rho, and conductivity, that is the sigma. What is this ratio? So remember that what effect on the question is, what is the effect on the product of resistivity and conductivity when temperature increases? It's very important question. So children, remember that resistivity is the reciprocal of conductivity. It is the reciprocal of conductivity, so it will be always equal to 1. So if you increase the temperature of a metal, resistivity increases but conductivity decreases. So what will happen? Product always remains same. So the answer is, it remains constant. It remains constant because the product of resistivity and conductivity does not changes. It always 1. Now see the question number 3rd. Drift velocity of the free electron. As I told you, drift velocity of free electron is of order 10 power minus 2 centimeter per second. After the successive collision between the electrons, the average velocity becomes very less and it is order of 10 power minus 2 centimeter per second. So see the 4th question. This is a cell and the student are finding terminal potential across this cell by connecting a resistance 5 ohm. He got 2 volt. When 10 ohm resistance is connected, the terminal voltage obtained 2.4 volt. The question is, what is the EMF and internal resistance of the cell? So children, in this case, V is equal to, or you can apply this formula as I told you, R equal to xi by V minus 1 into capital R. In the case 1, R xi by V means 2 volt minus 1, capital R is 5, and the equation second, R xi upon 2.4 minus 1, capital R is 10. Now comparing both, equate कर दीजिए दोनों को. So what we get children? Xi by 2 minus 1, xi upon 1.2 minus 2. Okay. So this take the transfer this side. Xi by 2 minus xi by 1.2 is equal to minus 1. So when you take the LCM, so this becomes xi common, 1.2 minus 2 is equal to minus 1. 1.2 minus 2, this becomes 0.8 upon 2.4 is equal to minus 1. It is also the minus. So this becomes 3. So xi is equal to 3 volt. So xi is equal to 3 volt. Now put the value of xi in here. We get R is equal to 3 by 2 minus 1 into 5. So this becomes 1.5 minus 1 means 0.5 into 5. So R is equal to 2.5 ohm. So
voltage is EMF is 3.3 volt and internal resistance is 2.5 ohm. Now see the question number 5. Question number 5 is across a metallic conductor of non-uniform cross section of a constant potential difference. This one is a wire and this is a battery. The question is which physical quantity remains constant throughout the conductor. It's very simple. Electric current is the physical quantity which remains constant. Electric current. Now the question number 6. The question number 6 is there is a carbon resistor of 47 plus minus 4.7 kilo ohm. You need to put the color coding. So you can rewrite 47 into 10 power 3 plus minus 4.7 10 power 3 ohm. Now look this number. This is the 10% of this number. So you can write 47 into 10 power 3 plus minus 10%. So this was your concept. B. Roy, Great Britain, very good wife. B stands for black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey and white. So 4 means yellow. Then 7 means violet. Then 10 power 3, that means orange. And plus minus 10%, that means it will be silver. If it is a 5%, then it will be gold. If it is a 10%, that means silver. So your answer is yellow, violet, orange and silver. Now see the question number 7. This one is a Dickman diagram, point A and point B. This one is L1, this one is L2. The question is this ring is made by a wire whose resistance is 12 ohm. Now it make like this. The upper length is L1 and the lower length is L2. Now the net resistance between A and B is 8 by 3 ohm. You need to find what is the value of L1 by L2. So children, suppose that the resistance of 1 unit length, let resistance of unit length is R. So what is the resistance from A to B? This one is L1R and this one is L2R. Now suppose that this one is X, this one is a Y. Okay. Now the total resistance of this portion is X and total resistance of this portion is Y. Now you can make the diagram like this. This is X, this is a Y. And they are in parallel combination. When this is a whole wire, that means X and Y are in series, the total resistance is 12 ohm. So one equation is X plus Y is equal to 12 ohm. Okay children. Now when they are connected in parallel, the total resistance, the parallel formula is R is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. R means total resistance, parallel resistance 8 by 3. 8 by 3 लिख दिया. R1 is X, Y upon X plus Y. Now from equation 1, you can solve it. XY upon 12. So this XY is equal to 32. Okay. XY is equal to 32. Now we apply identity. A minus B whole square. A minus B whole square is equal to A square, A plus B whole square minus 4AB. So in the same manner you can write X minus Y is equal to under root X plus Y whole square minus 4XY. So children, X plus Y is how much? 12. 12 square 144. XY is 32. So this becomes 4 into 32, 128. Subtract it, 16.
that means 4. So x minus y is equal to 4. Equation number 3. So x minus y is equal to 4 and x plus y is equal to 12. So when you solve 1 and 3, what we get? Y cancel. 2x is equal to 16. So x is equal to 8. When x is equal to 8, y is equal to x is equal to 8, y is equal to 4. So x by y is equal to 2 by 1, or you can say x is what? L1 r. So L1 by L2 is equal to 2 by 1. So the answer is 2 by 1. But in the given question there is a no 2 by 1. Okay, so obviously L1 from the diagram it is clear that L1 is small and L2 is more. So this one will be 1 by 2 because L1 is larger. So reciprocal of this, क्योंकि L1 तो बड़ा होगा तो बड़ा छोटा होगा, क्योंकि L1 की लेंथ छोटी है. डायग्राम देखिए आप, L1 छोटा है, इसका मतलब ये आंसर जो होगा आपका 1:2 होगा. ठीक है ना. ये हमने जो इस तरह से किया, हमने क्या एज्यूम कर लिया था? हमने शुरू में एज्यूम कर लिया था कि x बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर उल्टा आ गया था, क्योंकि x तो छोटा होगा क्योंकि ये लेंथ छोटी है. तो ये बेसिकली मुझे यहाँ पे y माइनस एक्स करना चाहिए था. तो आंसर इज 1/2. नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन इज देयर आर n रजिस्टर्स. n रजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू कैपिटल R है, और एक सेल है जिसका EMF है Xi, इंटरनल रेजिस्टेंस है कैपिटल R. जब इसको इस तरह से जोड़ा गया तो करंट I फ्लो कर रही है. जब इन सारे रेजिस्टेंसेस को आपने पैरेलल में जोड़ा उसी बैटरी से तो करंट 10I फ्लो कर रही है. आपको n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू कितनी है. तो केस 1 में देखो, करंट बराबर होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल वोल्टेज इज Xi, टोटल रेजिस्टेंस यहां पे n रेजिस्टेंस है और एक ही है, n+1R. इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन द सेकंड केस में करंट कितना है? 10I. वोल्टेज कितना है? Xi. अब ध्यान देना, यहां कितने रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं? R रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, n रेजिस्टेंसेस. एक की वैल्यू है R, तो टोटल यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हो गया R/n, और इसकी वैल्यू R, ये सीरीज में हो गया. सो व्हाट वी गेट? Xi R n+1 डिवाइडेड बाय n. ये n ऊपर चला गया. ठीक है बच्चों. अब ध्यान से देखो, Xi by n+1R, Xi by n+1R की जगह मैं I लिख सकता हूं. ये हो गया 10I इज इक्वल टू ni. इसको हमने I से रिप्लेस कर दिया तो I से I कट गया. n बराबर कितना आ गया? 10. यानी कुल कितने सेल जुड़े हुए हैं? कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं? 10 है. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9. दो डायग्राम बनाए हुए हैं. रिलेशन पूछ रहा है कि V1 V2 से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा. करंट बड़ी होगी, छोटी होगी या बराबर होगी. सर्किट में थोड़ा सा चेंज है. इसके पैरेलल सीरीज में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए कि आइडियल वोल्ट मीटर नहीं भी लिखा है तब भी हमें समझना चाहिए आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानते हैं, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है. ये एजम्पशन हमारा होता है. ये माना जाता है कि आइडियल अगर है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर है तो 0 रेजिस्टेंस. तो अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो करंट की वैल्यू दिस एंड दिस, ये दोनों पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस यहां का कितना होगा? 10 ओम ही रहेगा. 10 ओम ही रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है. तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई? I1 इज इक्वल टू 10/10 यानी कि 1 एम्पियर. ठीक है. अच्छा, अब यहां देखो, यहां पर है ये इसके सीरीज में, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे तो इनफाइनाइट ही रह जाएगा, यानी ये इनफाइनाइट ही रहा, और ये दोनों पैरेलल में, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस दोबारा से 10 हो. यानी I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10/10 यानी कि 1 एम्पियर. तो करंट तो बराबर हो गए. और अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का है और तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो उतना ही रहेगा जितना इसमें है, यानी कि वोल्टेज भी दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा. वोल्टेज में भी फर्क नहीं पड़ेगा और करंट में भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी. अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10. एक वायर है जिसकी लेंथ है L, रेडियस है स्मॉल r,
और इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। इसको पिघला दिया गया और पिघला के दोबारा से एक वायर बनाया गया और उस वायर का रेडियस रखा गया r/2। रेडियस r/2 तो मान लेते हैं उसकी लेंथ l हो गई। इसको पिघलाया और दोबारा से एक वायर बनाया जिसका रेडियस हो गया r/2 और लेंथ l। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, यानी कि l इंटू पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम इज इक्वल टू l इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, तो कट गया। L बराबर आ गया L/4। तो बोला कि उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ये नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो R इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो L/A। A का मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक बात। तो R डैश बराबर हो जाएगा रो कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि नया रेडियस तो r/2 हो गया ना। अब आप इसको रीअरेंज कर दो, कैसे करोगे, R डैश इज इक्वल टू कैपिटल L की जगह पे लिख दोगे 4L, ये हो गया 16L अपॉन पाई आर स्क्वायर, और रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, R के, तो 16R, और R की वैल्यू कितनी है 100 ओम, तो R डैश कितना आ गया 1600 ओम। So this one is your answer, 1600. So this one is your question number 10. Now children, see the question number 11th. Question number 11th is a color coding. हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है कि ये कार्बन रजिस्टर है, कितने ओम का है वो है 200 ओम का। 200 ओम का, 200 ओम का मतलब ये हो गया कि पहला बैंड तो हो गया रेड, दूसरा होगा 0, 0 का मतलब ब्लैक, तीसरा होगा 10, 10 पावर 1, 10 पावर 1 का मतलब हो गया ये 2 0, और ये होगा 10 पावर 1, 10 पावर 1 का मतलब हो गया ब्राउन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस रेड वाले बैंड को हटा के ग्रीन कर दिया, बाकी सेम है, तो ग्रीन का मतलब तो हो गया 5, ब्लैक ऑलरेडी है 0 इंटू 10 पावर 1 यानी कि 500, तो कितना ओम हो जाएगा 500 ओम, 500 ओम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे भी क्वेश्चन नंबर हमने 10 किया था, कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, इसको n टाइम खींच दिया, n टाइम खींच दिया, तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम पहले भी कर चुके हैं, R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R, यानी उसका रेजिस्टेंस कितना टाइम हो जाता है, n स्क्वायर टाइम हो जाता है। ओके, तो ये बिल्कुल वही है, वॉल्यूम इक्वल करना है और फिर रेजिस्टिविटी सेम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या होगा। तो बच्चों बट बेसिक चीज डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होगा, ये रो इज इक्वल टू R A बाई L होता है, और R का मतलब होता है V बाई I। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, V बाई L को हम बोलते हैं E A अपॉन I। तो ये हो गया बेटा E A, और I की वैल्यू होती है NeAVD, A से कट गया तो ये आ गया E अपॉन NeVD। सो रो इज इक्वल टू E अपॉन NeVD। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 एक मेटेलिक वायर है AB whose area of cross section decreases from its end A to B, means its area of cross section like this, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम A टू B, यानी जैसे जैसे आप A से B की तरफ जा रहे हो एरिया घट रही है। द एंड A इज कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड B एंड कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल। सो वॉट एवर द एरिया द करंट बिकम्स कांस्टेंट बिकॉज ऑल इन सीरीज, सो करंट इज कांस्टेंट। नाउ सो द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन की करंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, करंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट। आप B से A जाएंगे तो करंट की वैल्यू हर जगह सेम ही रहेगी, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो I बराबर होता है NeAVD,
आई तो कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, यानी कि वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यानी अगर आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो एरिया तो घटेगी, एरिया घटेगी, सॉरी एरिया बढ़ेगी। जब आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो एरिया बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी। सो अगर आप बी से ए तक जाते हैं तो एरिया बढ़ती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है। ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 16। A heating element has a resistance of 100 ohm at room temperature. So room temperature means 27 degrees Celsius. Resistance is 100 ohm. When a current supply 220 volt voltage supply, current is 2 ampere in it and temperature becomes 500 degrees Celsius. Okay, so at room temperature the resistance is 100 ohm. When the current is 2 ampere and voltage is 220, the temperature is 500, so you can find the resistance. Suppose that this one is R1, so this is R2, 200 by 110 ohm. So at temperature this resistance is this one. So children, you can apply the formula. What is the temperature coefficient of resistance? R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1. R2 is 110, R1 is 100, 1 plus alpha T2 means final temperature is 500 degrees Celsius minus 27 degrees Celsius. Okay, so this becomes 100 मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो ये हो गया 110 इज इक्वल टू 100 प्लस 100 अल्फा इंटू 473, इसको इधर लेके चले जाओ तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 473 अल्फा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, यू विल गेट द आंसर एंड योर आंसर इज, आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस। सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 16. Now see the question number 17. The resistivity of a conductor depends on, ना तो एरिया पे डिपेंड करता है ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। तो 17th का आंसर हो गया इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल द रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, अगर उसका रेडियस हाफ और लेंथ इज रिड्यूस्ड 1/4 इज ओरिजिनल। उसका रेडियस क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया, और लेंथ कितना कर दिया, 1/4 कर दिया ओरिजिनल लेंथ का, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो मान लो ये लेंथ L थी और उसका रेडियस पहले R था, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, यानी कि पाई R स्क्वायर। अब R डैश रो, लेंथ को आपने क्या कर दिया 1/4 यानी कि L बाई 4, रेडियस कितना कर दिया हाफ, तो ये भी हो गया R स्क्वायर बाई 4, ये तो कट गया इससे, तो कितना आ गया रो L बाई पाई R स्क्वायर, यानी कि रिमेन्स R, यानी कि रेजिस्टेंस उसका कितना रह गया R हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया 18th का R। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल 17 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल 17 की तरह है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 5 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो आपको बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पता करना है आपको। तो सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था। ठीक है ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं आप। फॉर्मूला है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है ना, तो R2 की वैल्यू कितनी है 6, R1 है आपका 5, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 यानी कि 100 माइनस 50, ये इधर आ गया बेटा 6 माइनस 5, 5 अल्फा इक्वल टू 50, तो 1 बाई 250, ये आ गया अल्फा।
ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पूछा है तो R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, कोई वैल्यू ले लो, चाहे R1 या R2 वाली, R1 वाली ले लो। तो R की जगह पे लिख दिया आपने 5, R0 तुम्हें निकालना है, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 250। टेम्परेचर कितने कितने से लिया है, 50 से 0 पे गए हो तुम इस वाले फॉर्मूले में। ये R1 है और ये आपका T1 माइनस 0, यानी कि आपका ये हो गया आपका 50। तो कितना आ गया ये 5, 5 इज इक्वल टू R0 इंटू 6/5, तो R0 इज इक्वल टू 25/6। 25/6 लगभग कितना आ जाएगा, 4 ओम के करीब आ जाएगा ये आंसर आपका 19 का। ठीक है, तो लमसम आंसर आ गया 4.1 के करीब, 4 ओम के करीब हो गया आपका आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 भी आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि बल्ब का रेजिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है पर 5 डिग्री सेल्सियस, तो पर 5 डिग्री सेल्सियस दिया है तो पर 1 डिग्री सेल्सियस पे इसका निकाल लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर 200 ओम पे इसको निकालना है। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 20 at 100 degree Celsius resistance is 100 ohm and alpha is given 0.05 per degree Celsius, that means per 5 degree Celsius, so 0.01 per degree Celsius, for 5 degree Celsius it is 0.05, for per degree Celsius this one. So आपको बताना है कि 200 ओम पर टेम्परेचर कितना होगा। तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, सो R2 इज 200, R1 इज 100, 1 प्लस 0.01 एंड T2 इज यू नीड टू फाइंड एंड T1 इज 100, so this becomes 2 is equal to 1 plus 0.01 T minus 100, so 1 is equal to 1000 plus 1100, so this answer is 1100 degree Celsius. So answer is 1100 Celsius, but option is not given, so you can tick on the 1200 degree Celsius, it is the closest value. Now one question remains, the question number 15th. So what is the question number 15? There is a charging battery of 200 volt. You need to find what should be the maximum value. So this one is your question कि एक बैटरी है 200 वोल्ट की जिसको आपको चार्ज करना है 220 वोल्ट से। रेजिस्टेंस स्मॉल आर जो है 1 ओम दिया हुआ है, कैपिटल आर बताना है आपको कितना होगा। तो देखिए ये आपकी 220 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम 200 वोल्ट की बैटरी, इसको आपको चार्ज करना है। ये चार्जर है 220 वोल्ट का, यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस जोड़ना है R, तो कितना होगा इसका वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू। तो हमें एक फॉर्मूला बताया गया है R इज इक्वल टू Zi/V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। R की वैल्यू कितनी है आपकी 1 ओम, Zi की वैल्यू है आपकी 200, जो आपको चार्ज करना है 220, ये 200 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, so this becomes 1.1, so 1.1 minus 1 into R, so R will be what, it will be how much, 0.1, that means 10, so the value is